Hello students, welcome to the EduSet program. Myself Dr. Raman Rani Mittal, lecturer in chemistry from Government Polytechnic College for Girls, Patiala. Today we are going to discuss a topic on analysis of water. Before studying analysis of water, let us have a look on the subtopics which we are going to study. Hard and soft water, hardness of water, types of hardness, degree of hardness, then estimation of hardness of water by EDTA method, then chemical analysis of water. In this analysis, we will study estimation of alkalinity, estimation of TDS, estimation of free chlorine and chloride ions, and in last estimation of dissolved oxygen. So, water, all of you know that water is essential to all forms of life. It is principal constituent of Earth's crust of the total global water. Oceans and inland saline water bodies hold about 97% water and fresh water amounts to only 2.7%. Unfortunately, most of the fresh water is not easily accessible since it is locked up in glaciers, frozen lakes and under the ground. So, the fraction of water which is available for human use is only 0.03% of the total global water supply. So, it is a need of the hour to use available water carefully and economically. So, now we come to hard and soft water. We can classify water into two categories depending on its behavior towards soap solution. So, it is soft water and hard water. Soft water, the water which produces lather with soap solution easily is called as soft water. Examples of soft water: distilled water and rainwater. In actually soft water is free from any type of chemicals, salts, etc. Whereas hard water, definition wise, hard water is that which cannot produce lather with soap solution. Lather means chug, which cannot produce lather with soap solution easily is called as hard water. Examples of hard water can be river water, sea water, tap water, etc. So, now what is there in the water which makes it hard? So, we can say causes of hardness of water. Hardness of water is due to the following salts dissolved in it. There are 6 salts: bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So, we can say bicarbonates of calcium and magnesium. Formula of calcium bicarbonate is CaHCO3 twice and formula of magnesium bicarbonate is MgHCO3 twice. Chlorides of calcium and magnesium means calcium chloride CaCl2 and magnesium chloride MgCl2. The last two salts are calcium sulphate and magnesium sulphate, CaSO4 and MgSO4. Now, why hard water does not produce lather with soap solution? Because it reacts with soap. So, soap in itself is a chemical, means it is a salt. Soap is sodium salt of higher fatty acids like stearic acid, oleic acid or palmitic acids. They are the acids, and if they are converted into their sodium salts, they are called as the soaps. So, when hard water is made to react with soap, it forms insoluble precipitates. So, we can say when hard water is soap is added to hard water, the anions of fatty acid present in soap, they react with calcium and magnesium ions of the hard water. So, you can see by reaction, this is soap. Sodium stearate, formula of stearic acid was C17H33COOH and its sodium salt, sodium stearate is called as soap. And
we have taken one salt from the hard water, maybe it's calcium chloride. So, when these two are made to react with each other, then what happens, this sodium ion is replaced by calcium ion. So, we get calcium stearate and sodium chloride. So, these are the curdy white precipitate. So, no leather is produced until all the calcium and magnesium ions present in hard water are precipitated out as calcium stearate. So, this results in the wastage of soap. So, now we come to types of hardness. Hardness of water is also of two types. One is temporary hardness, another is permanent hardness. Temporary hardness, so it is due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium. We can say when either calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate is present in hard water, it makes the hardness temporary. Why it is called temporary? It is so because it can be simply removed by boiling hard water. What happens on boiling? Bicarbonates of calcium and magnesium, they get decomposed, they get broken, they get converted into carbonates. By reaction you can see here कि ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट है पानी में, इसके कारण जो है टेम्परेरी हार्डनेस है. व्हेन वी आर बॉइलिंग दिस वाटर, so what will happen, calcium bicarbonate will decompose into calcium carbonate, water and कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये निकल जाएगी और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्यूबल है. सो पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं और जो पानी है हमारा दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्डनेस. सिमिलरली अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ऑन बॉइलिंग ये जो है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी. ये इनसॉल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं और हमारा जो हार्ड वाटर है इट विल बिकम सॉफ्ट. सो दीज कार्बोनेट्स बीइंग इनसॉल्यूबल दे आर रिमूव्ड एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड. जबकि परमानेंट हार्डनेस, नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट हार्डनेस जो है इसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते. सो ये किस कारण है? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. मतलब कि हमारे पास 4 सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड. इनमें से कोई एक भी पानी में प्रेजेंट है तो पानी की हार्डनेस जो है दैट इज़ परमानेंट. इसको परमानेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपली बॉइलिंग वाटर. सो नाउ वी कम टू डिग्री ऑफ हार्डनेस. डिग्री ऑफ हार्डनेस मतलब कि पानी में कितनी हार्डनेस है, अमाउंट ऑफ हार्डनेस. सो इन ऑर्डर टू नो द हार्डनेस ऑफ वाटर वी हैव टू नो कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर. हमारे पास 6 सॉल्ट हैं, सो इसलिए हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि जितना भी कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है उसका अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा. द रीज़न फॉर सिलेक्टिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट एज अ स्टैंडर्ड इज़ कि एक तो ये पानी में इनसॉल्यूबल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है, इक्विवेलेंट मास 100 है और हमारी कैलकुलेशंस जो हैं आसान हो जाते हैं. So, degree of hardness definition wise it is the number of parts by weight of hardness causing substances in terms of equivalents of calcium carbonate present in definite number of parts by weight of water depending upon the units in which hardness is expressed. कहने का मतलब क्या है कि hardness causing substances कौन कौन से substances हैं जो 6 साल्ट हमने किए हैं, bicarbonates of calcium and magnesium, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कितना कितना इनका अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट इन डेफिनेट के किसी फिक्स वेट ऑफ वाटर में कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ हार्डनेस. सो हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 4 तरह के यूनिट्स हैं. पार्ट्स पर मिलियन, पॉपुलरली नोन एज ppm, Clark's degree of hardness expressed as degree Clark, French degree of hardness degree French, milligrams per liter mg per liter. So इनमें से जो है फर्स्ट वन दिस पार्ट्स पर मिलियन और ppm and milligrams per liter they are very popular, they are commonly used
and although they are same, parts per million and milligrams per liter, they are the same thing. So you can see here कि कैसे कि 1 मिलीग्राम पर लीटर मीन्स के 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी का वेट कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितने मिलीग्राम बने 1000 गुना 1000 मिलीग्राम ऑफ वाटर. सो वी कैन से कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम्स ऑफ वाटर. सो 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस 10⁻6 मिलीग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है. सो दिस इज 1 upon 10⁻6 or this is equal to ppm. So we can say 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. So relationship among various units you can see कि 1 ppm का मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का कितने 10⁻6 पार्ट्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट है. 1 डिग्री फ्रेंच का मतलब क्या है 1 पार्ट किसका हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का, पानी का अमाउंट 10�5 पार्ट्स. और अगर 1 डिग्री क्लार्क का मतलब है एक पार्ट हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का कितने पानी में 70,000 पार्ट्स ऑफ पानी. सो वी कैन से कि 10⁻6 ppm that is equal to 10⁻⁴ डिग्री फ्रेंच that is equal to 70,000 डिग्री क्लार्क. और अल्टीमेटली वी कम टू द सोल्यूशन के 1 ppm इन सबको जो है इक्वलाइज करके 1 ppm इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच दैट इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क. सो डेफिनेशन वाइज लेट्स हैव ए जस्ट लुक के पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या है पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10⁻6 पार्ट्स ऑफ वाटर. क्लार्क डिग्री ऑफ हार्डनेस के hardness causing substances in terms of calcium carbonate present in 70,000 parts of water. French degree of hardness का मतलब है कि hardness causing substances in 10⁻5 parts of water या 100,000 parts of water. और मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि hardness milligrams of hardness causing substances present per liter of water. So ये थे हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड यूनिट्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस डिग्री ऑफ हार्डनेस. कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है कि अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस दे आर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट एंड वी कैन एक्सप्रेस डिग्री ऑफ हार्डनेस इन 4 यूनिट्स. Of these 4 units ppm and milligram per liter are commonly used. Now how can we come to know that this is the amount of hardness causing substance present in hard water. मतलब कि how can we estimate hardness of water कि given sample of water में कितनी जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, कितना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या कितनी परमानेंट हार्डनेस है. सो इस सब को मेजर करने के लिए, इस सब को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास हालांकि 2-3 मेथड है पर एज पर योर सिलेबस इट इज़ EDTA मेथड. सो इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड. इस मेथड से हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए हमें 3 ये वाले सोल्यूशन की ज़रूरत है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ EDTA. EDTA क्या है? इट इज़ डाई सोडियम साल्ट ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. इसको शॉर्ट एब्रीवेटेड इसको हम EDTA करते हैं. एक हमें बफर सोल्यूशन चाहिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी pH अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब होगी. एक इंडिकेटर चाहिए जिसका नाम है इरियोक्रोम ब्लैक टी और इसको हम EBT से एब्रीवेट करते हैं. सो EDTA का फार्मूला आप यहाँ फिर से देख सकते हो. इट इज़ इथिलीन CH2 डाई अमीन NH2 दोनों H यहाँ पर निकल गए, एसिटिक एसिड से रिप्लेस हो गए. सो ये हमारा यहाँ पर एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है CH3COOH. सो H निकल गए यहाँ से CH2COOH. यहाँ पर 4 एसिटिक एसिड लग गए हैं. यहाँ NH2 था प्रीवियसली, दोनों तरफ के 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 एसिटिक एसिड ग्रुप यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए. सो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सो टोटल हमारे एसिटिक एसिड ग्रुप्स हो गए 4. सो टेट्रा एसिटिक एसिड इथिलीन डाई अमीन मतलब 2 अमीन ग्रुप हैं NH2 इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA. सो ये जो है सब बहुत इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में. सो अब जो हमने एस्टिमेशन करनी है उसकी थ्योरी क्या है, कैसे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि
जब हार्ड वाटर को EDTA सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो कम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि EDTA जो है इसकी टेंडेंसी है कि आयंस को ट्रैप करना, कम्प्लेक्स बनाना, और आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैं। कैटायंस मतलब कि कौन कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सो वी कैन से कि जब हम हार्ड वाटर को EDTA सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे, हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पानी में प्रेजेंट है वो कम्प्लेक्सेस बनाएंगे। आप यहाँ इक्वेशन में देख सकते हो कि कैल्शियम आयन हार्ड वाटर में प्रेजेंट था, EDTA अगर हम डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम EDTA कम्प्लेक्स। इसी तरह अगर हमारे हार्ड वाटर में मैग्नीशियम आयन्स हैं तो EDTA डालने से उसका कम्प्लेक्स बन जाएगा MgEDTA कम्प्लेक्स। इंडिकेटर है, अब इंडिकेटर का क्या रोल है, इंडिकेटर ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर pH पे 10 पे काम कर रहा है। इंडिकेटर व्हेन एडेड इन हार्ड वाटर एट pH 10 it also combines with calcium and magnesium ions to form weak complex of wine red color। इसका अपना, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इरियोक्रोम ब्लैक टी, सो इसका जो कलर है काफ़ी ब्लू कलर का है। सो अगर हम हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अगर इसका कम्प्लेक्स बन जाए तो इसका जो कलर है दैट विल बिकम वाइन रेड कलर। सो यहाँ पे कैल्शियम फ्रॉम हार्ड वाटर, ये हमारा इंडिकेटर है, कैल्शियम EBT कम्प्लेक्स, या मैग्नीशियम है हार्ड वाटर से और ये EBT ब्लू कलर का है, और जैसे ही ये कम्प्लेक्स बनेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, EDTA सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लेना है, टाइट्रेशन फ्लास्क में हम हार्ड वाटर लेंगे, उसी हार्ड वाटर में हम ये EBT डाल देंगे इंडिकेटर, और साथ में हमने जो बफर सॉल्यूशन डालना है वो तो डालना ही है, क्योंकि उसी pH पे ये EBT काम कर रहा है। जैसे ही हम EBT डालेंगे तो क्या होगा कि पानी का जो कलर है दैट विल बिकम वाइन रेड, एंड व्हेन वी टाइट्रेट this wine red color solution against EDTA solution, at the end point this complex is broken by EDTA and its blue color is restored, that is the end point. So you see here the solution is titrated against EDTA solution, ये जो solution बनाया हमने वाइन रेड कलर का हार्ड वाटर और इंडिकेटर का, at the end point metal indicator complex is broken down by EDTA, blue indicator is liberated. So ये जो complex है it is broken by this EDTA और वही हमारा कैल्शियम EDTA complex आ जाएगा, और जैसे ही ब्लू कलर आएगा it means कि this is the end point. So change of color of solution from wine red to blue is the end point. सो प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटली हमने जो है 3 स्टेप्स लेने हैं कि सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाना है, प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, देन टाइट्रेशन ऑफ सैम्पल हार्ड वाटर। इससे हम आगे फर्दर परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस मेजर कर लेंगे। सो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, कि वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मतलब कि ये हमने अपने आप बनाना है कि ऐसा हार्ड वाटर जिसकी हमें हार्डनेस पता है, नोन है। स्टैंडर्ड का मतलब ये कि नोन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कितना, 1 ग्राम ड्राई कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट HCl। सो इसको जो है डिज़ोल्व करने के बाद इसको गर्म करेंगे, इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, सारा उसमें से जो लिक्विड है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और इस रेजिड्यू को, जो सॉलिड रेजिड्यू आएगा हमारे पास, इसको हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर बनानी है। अब जो है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, 1 ग्राम, मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम। सो 1000 ग्राम है 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है,
1 ml ऑफ सोल्यूशन में 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये हमारा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बन गया कि इसको हम यहाँ पे अलग से कि वाटर कंटेनिंग 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 ml ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ये हमें पता है कि ये हमारी हार्डनेस है इस पानी की जो हमने खुद बनाया है। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन हमने किस तरह से स्टैंडर्डाइज करना है कि हमने ब्यूरेट में EDTA सॉल्यूशन लेना है। अब जो है जो हमने हार्ड वाटर बनाया है स्टेप 1 में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 50 ml वो लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। इसमें हमने बफर सॉल्यूशन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है 10-15 ml, मतलब एक टेस्ट ट्यूब भर के डाल देंगे और इंडिकेटर डालना है 5 ड्रॉप्स। हमारा सॉल्यूशन जो है वाइन रेड कलर का हो जाएगा। टाइट्रेट विद EDTA सॉल्यूशन। वाइन रेड जब कलर ब्लू हो जाए उस टाइम हमारे जो एंड पॉइंट आ गया, हम जो है टाइट्रेशन रोक देंगे। अब हमने वॉल्यूम नोट कर लेनी है कि कितनी वॉल्यूम जो है हमारी यूज़ हुई है EDTA की, कि लेट द वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज्ड बी V1 ml, और हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिया है 50 ml। सो V1 ml ऑफ EDTA इज़ यूज्ड फॉर 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। सो टाइट्रेशन ऑफ सैम्पल हार्ड वाटर, सेम स्टेप करने हैं हमने कि टोटल हार्डनेस मेजर करेंगे। टोटल का मतलब कि टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट। सो हम सैम्पल हार्ड वाटर का मतलब है कि जिस पानी की हमने हार्डनेस मेजर करनी है टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट, उसका 50 ml लेंगे और वही स्टेप करेंगे जो हमने स्टेप 2 में किए हैं। मतलब कि EDTA सॉल्यूशन ब्यूरेट में लेकर इसमें हमने 50 ml सैम्पल हार्ड वाटर में हमने बफर सॉल्यूशन डालना है, इंडिकेटर डालना है और टाइट्रेट करना है। जब ब्लू कलर आ जाए, एंड पॉइंट आ जाए, वो वॉल्यूम हमने EDTA की नोट करनी है। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज्ड बी V2 ml, मतलब कि इतने ml जो है हमारा EDTA लगा है, कितने ml 50 ml ऑफ सैम्पल हार्ड वाटर के लिए। सो अब हम जो है कैलकुलेशंस करेंगे इससे अगला स्टेप है कि पिछले स्टेप में हमने जो है टोटल हार्डनेस मेजर की है, अब हम परमानेंट हार्डनेस मेजर करेंगे। सो परमानेंट हार्डनेस मेजर करने के लिए जो हमारा सैम्पल वाटर है उसमें से हमने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करनी है। कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग। सो सैम्पल हार्ड वाटर का 250 ml लेंगे, उसको हम बॉयल करेंगे जब तक कि 250 ml हमारा कम होके 50 ml रह जाए। फिल्टर इन ए मेजरिंग फ्लास्क एंड मेक द वॉल्यूम 250 बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, कि 50 ml जो हमने सैम्पल हार्ड वाटर को बॉयल करके बनाया है उसको हम उसकी वॉल्यूम हम 250 ml बनाएंगे, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर पाना है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब कि जिसमें किसी भी तरह का कोई सॉल्ट नहीं। सो अब इसमें से हमने 3-4 बार टाइट्रेशन करने, सो 50 ml हर बार लेंगे। 50 ml ऑफ दिस बॉइल्ड हार्ड वाटर इज़ टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन। मान लो कि अब हमारी वॉल्यूम जो आई है V3 ml है। 3 वॉल्यूम्स हमारे पास हो गई हैं, V1 ml, V2 ml एंड V3। V1 जो है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ आई है, V2 टोटल हार्डनेस के लिए और V3 जो है परमानेंट हार्डनेस के लिए। सो कैलकुलेशन के 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये हमने पहले ही बनाया था कि हमारा जो हार्ड वाटर है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि 1 ml ऑफ दिस वाटर इज़ कंटेनिंग 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA के V1 ml जो है EDTA का हमारे 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को टाइट्रेट किया है। 50 ml में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? 50 mg। सो इसका मतलब 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 अपॉन V मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। सो इसके लिए हमने क्या किया है कि सैम्पल हार्ड वाटर कितना लिया था 50 ml, EDTA सॉल्यूशन कितना यूज़ हुआ V2। अब हमें पिछले स्टेप से पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टेप 1 से मिला है हमें ये।
यहाँ इस स्टेप में हमारी जो EDTA की वॉल्यूम यूज़ हुई है V2 ml ऑफ EDTA विल बी इक्वल टू 50 into V2 upon V1 milligram of calcium carbonate. 1000 ml, now 50 ml of sample, 50 ml of sample hard water, मतलब कि V that is equal to V2 ml of EDTA. So this is equal to V2 into 50 ml means 50 upon V1 mg of calcium carbonate. 1000 ml of sample hard water will be equal to V2 into 50 upon V1 into 1000 upon 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और शॉर्ट में V2 upon V1 ये कैंसिल हो जाएगा 50-50 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो टोटल हार्डनेस हमारे पास आ गई V2 upon V1 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर. मिलीग्राम पर लीटर और ppm सेम चीज़ है, तो हमारा ये बन गया V2 upon V1 इंटू 1000 ppm. ये हमारी टोटल हार्डनेस आ गई. अब जब परमानेंट हार्डनेस के लिए सेम स्टेप्स लेंगे, सिर्फ हमारी वॉल्यूम का फ़र्क है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस, यहाँ पे हमने बॉइल्ड वाटर लिया 50 ml. सो लेट द वॉल्यूम ऑफ EDTA सोल्यूशन यूज कितनी है V3. 50 ml ऑफ बॉइल्ड हार्ड वाटर इज इक्वल टू V3 ml ऑफ EDTA, और दिस इज इक्वल टू V3 इंटू 50 अपॉन V1, क्योंकि 1 ml EDTA का 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम के बराबर है. सो ये 1 ml ऑफ हार्ड वाटर विल बी इक्वल टू V3 इंटू 50 अपॉन V1 इंटू 1 अपॉन 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. 1000 ml जो है ये इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि V3 इंटू 50 अपॉन V1 इंटू 1000 अपॉन 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. 50 से 50 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आ गया V3 अपॉन V1 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये जो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू दिस मच V3 अपॉन V1 इंटू 1000 ppm. सो हमारे पास दो तरह की हार्डनेस आ गई, टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस. सो अब हम टेम्परेरी हार्डनेस निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल हार्डनेस जो है परमानेंट और टेम्परेरी दोनों को मिला के है. सो इस हमारे वी नो टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस. सो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस. टोटल कितनी है V2 अपॉन V1 इंटू 1000, और परमानेंट कितनी है V3 अपॉन V1 इंटू 1000. 1000 कॉमन है, V2 अपॉन V1 माइनस V3 अपॉन V1. सो इतने ppm जो है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस आएगी. सो आप देख सकते हो कि इस मेथड से EDTA से हम टोटल हार्डनेस भी एस्टिमेट कर सकते हैं, परमानेंट भी, और टोटल और परमानेंट से हम माइनस करके टेम्परेरी हार्डनेस एस्टिमेट कर सकते हैं. So this was about the estimation of hardness of water. Now we come to chemical analysis of water. Quantitative estimation of various constituents present in water by chemical methods is called as chemical analysis. क्वांटिटेटिव मीन्स के कितना कितना अमाउंट किसी भी कंपाउंड का प्रेजेंट है, किसी भी केमिकल का, किसी आयन का, सॉल्ट का. सो उसको हम जो है केमिकल एनालिसिस कहेंगे. सो क्या कुछ हो सकता है, वाटर में कंटेन गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, और साल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा. सो केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर जो है हमारे पास 5 तरह की है, कि इसमें हम एस्टिमेशन ऑफ एल्कलिनिटी, एस्टिमेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, TDS के नाम से जाना जाता है इसको, एस्टिमेशन ऑफ फ्री क्लोरीन, एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, एंड एस्टिमेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो सबसे पहले हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ अल्कलिनिटी, कि बेसिक सब्सटेंसेस कितने हैं, कि बेसिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा. इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स अगर पानी में प्रेजेंट है तो हमारा पानी अल्कलाइन है. अल्कलाइन मतलब बेसिक है. सो अब आप देख सकते हो कि एनायंस तो वही हैं, चाहे हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट. सो अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू अनायंस. कौन कौन से, हाइड्रोक्साइड आयंस हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, या बाइकार्बोनेट हो सकते हैं. ये तीन आयन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलिनिटी ऑफ वाटर. सो इनको हम कैसे, नेचुरली दे कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट सम एसिड सॉल्यूशन. सो
These ions can be estimated by titrating water sample, जिसकी हमने एनालिसिस करनी है अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड कोई भी एसिड ले सकते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, जिसके की हमें नॉर्मेलिटी पता है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, और इंडिकेटर जैसे कि फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, इनमें से हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सो क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हैं? हाइड्रोक्साइड आयन जो कि